کے اندر ایک اللہ کی ولی رہتی ہے جن کو زمانہ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کے نام سے یاد کرتا ہے۔ نظام الدین اولیاء ہے، ایک دن ان کے مرید آ گیا، کہاں؟ خانقاہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آیا کیونکہ ان کی یہ زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے تحاشا درود پاک پڑھتے، بے تحاشا اگر گن کے پڑھتے تو رب کائنات گن کر عطا کرتا ہے، اور انگنت پڑھا ہے تو رب کائنات انگنت عطا کرتا ہے۔ یعنی جیسے ہی خانقاہ میں بیٹھے تھے ایک مرید آ گیا، مرید سمجھتے یا نہیں؟ جیسے ہی مرید آیا، کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں تو وہ منہ لگ جاتے ہیں، پیر صاحب کے منہ لگ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک استاد کے قریب ایک شاگرد ہو جاتا ہے، جب شاگرد زیادہ قریب ہو جاتا ہے استاد کے تو استاد کے منہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک امام کے قریب ایک مقتدی ہو جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی منہ لگ جاتا ہے، بحث بھی کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک مرید تھا، جیسے ہی خانقاہ کے اندر آیا، لیکن وہ پکا نہیں تھا بلکہ کچا مرید تھا۔ کیا تھا؟ کچا مرید تھا۔ جیسے ہی خانقاہ میں گھسا ہے اور گھسنے کے بعد کبھی ادھر سونگ رہا ہے، کبھی ادھر سونگ رہا ہے، کبھی ادھر سونگ رہا ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہے، نہ کہیں اگربتی سے لگ رہی ہے، نہ کہیں لوبان چل رہا ہے، نہ کہیں کچھ اتفاق نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اتنی بہترین خوشبو آ کہاں سے رہی ہے؟ حیران و پریشان ہو گیا ہے، پریشان ہو کر کہتا ہے سرکار آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جلدی بتائیے نا کہ یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے؟ نہ کہیں عطر دام نظر آ رہا ہے، نہ کہیں رومان سلگ رہی ہے، نہ کوئی اگربتی جل رہی ہے، یہ اتنی بہترین خوشبو آ کہاں سے رہی ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں نادان یہ کوئی عطر دام سے خوشبو نہیں آ رہی ہے، یہ نظام الدین اولیاء کے رومان سے خوشبو آ رہی ہے، نظام الدین اولیاء کے رومان سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اتنے میں مرید تھا، کہتا ہے پر اے میرے آقا اگر یہ رومال مجھے دے دے تو بڑی نوازش ہوگی۔ اب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور آنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے کانٹے سے رومال لیا ہے اور لینے کے بعد مرید کو دے دیا ہے۔ مرید مست ہوا ہے، جیسے ہی خانقاہ سے نکلا ہے اور نکلنے کے بعد راستے میں بولتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے پیر صاحب اعلیٰ قسم کا عطر لگاتے ہیں، لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے اچھی کوالٹی کا عطر لگاتے ہیں، لیکن آج ان کا پردہ کھول کر رکھ دوں گا، آج ان کا پردہ فاش کر دوں گا۔ جیسے ہی دوڑا دوڑا گھر پر گیا ہے، بیٹھ جاتا ہے، لے پانی دے پانی، لے پانی دے پانی، لے پانی دے پانی، خوشبو کم ہونے کی بجائے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، خوشبو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جس راستے سے پانی جا رہا ہے وہ راستہ بھی خوشبو سے معطر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجیے، کبھی رومال کو ہوا میں لہرا رہا ہے، خوشبو کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہوائیں اس رومال سے ٹچ ہو کر گزر رہی ہے، لیکن وہ ہوائیں بھی پھر خوشبوؤں سے معطر ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ فضائیں بھی خوشبوؤں سے معطر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حیران و پریشان ہو گیا ہے، اب دوڑا دوڑا کہاں آ رہا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے سرکار جلدی بتائیے یہ کس برانڈڈ کمپنی کا مال ہے، جلدی بتائیے یہ اچھی کوالٹی کا عطر نظر آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء جلال میں آ کر کہتے ہیں اے نادان جس کو کوئی عطر کی خوشبو بول رہا ہے یہ عطر کی خوشبو نہیں ہے بلکہ میرے پیغمبر کے پسینے کی خوشبو ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، اب پوری تھا تو کچا، فٹ سے سوال کر دیا کہ سرکار آپ تو یہاں ہندوستان کے اندر رہ رہے ہو لیکن مصطفیٰ مدینے میں ہے، لیکن یہ خوشبو آئی کہاں سے ہے؟ نبی تو مدینے میں رہ رہے ہیں، یہ پسینہ آیا کہاں سے؟ جب اتنا کہا ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آنسو لانے کے بعد بولتے ہیں اے نادان تجھے پتہ نہیں ہے یہ میری زندگی کا معمول رہا ہے کہ میں نماز فجر کے بعد میں اپنے پیغمبر پر بے تحاشا درود پاک پڑھتا تھا۔ ایک دن مجھے بخار لگ گیا،
गया, मुस्तफा पर दुरूद पाक न पढ़ सका। दूसरा दिन हो गया, मुस्तफा पर दुरूद पाक न पढ़ सका। तीसरा दिन हो गया, मैं मुस्तफा पर दुरूद पाक न पढ़ सका। जब चौथे दिन नमाज फजर के बाद मैं बिस्तर अदालत पर पहुंचा हूँ तो अचानक मेरे दिल ने फैसला किया, मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तखत दी है। जैसे ही दौड़कर मैं दरवाजे पर पहुंचा हूँ, मैंने जैसे ही फाटक को खोला है, मेरी हैरत के इंतहा न रही। मैंने दरवाजे पर देखा तो कोई और नहीं है, दुनिया का शहंशाह जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह दरवाजे पर खड़े हैं। कहा सरदार मैं हकीकत देख रहा हूँ या कोई ये सपना देख रहा हूँ? कहा निजामुद्दीन औलिया तू सपना नहीं बल्कि हकीकत तू देख रहा है। तो निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मैंने घर के अंदर चारों तरफ देखा है, मैंने किसी कपड़े पर भरोसा नहीं था। मैंने अपनी चादर ली है और मैंने अपना रुमाल लिया है, जमीन पर बैठा दिया है। मुस्तफा उसी रुमाल पर विराजमान हो गए हैं। विराजमान होने के बाद मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ निजामुद्दीन औलिया तुझे पता नहीं है कि जब तू नमाज़ फजर के बाद मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता था तो मस्जिद मैं गुंबद खजरा के अंदर बैठकर मस्ती में समाअत करता था, लेकिन 3 दिन का अरसा हो गया तो मुझ पर दुरूद पाक न पढ़ सका। आज चौथे दिन मैं खुद आ गया हूँ, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ दे, मैं मस्त हो जाऊं। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मैं मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अचानक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तलवे पर पसीना आया है। उसी पसीने का एक कतरा मेरे रुमाल में जज्ब हो गया है। नबी का वो पसीना है, अगर एक मर्तबा दुल्हन बन ले तो एक नस्ल नहीं, 2 नस्ल नहीं, 3 नस्ल नहीं, बल्कि 7 पुस्तक बच्चे खुशबूदार जन्म लेते हैं। और मुस्तफा को बुलाने का कितना प्यारा तरीका है। अगर मुस्तफा के अपने घरों पर बुलाना है तो मुस्तफा पर दुरूद पाक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। मुस्तफा पर दुरूद पाक इतना प्यारा तरीका है मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ने का। लेकिन याद रखो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब तुम दुरूद पाक पढ़ोगे तो मुस्तफा तुम्हारे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे दुरूद पाक को तुम्हारे हर किरदार को भी देखते हैं। जब तुम्हारा अकीदा है कि मुस्तफा हमारे दुरूद पाक को भी सुनते हैं तो ये भी ख्याल रखना चाहिए मुस्तफा हमारी इन अदाओं को भी हमारी इन अदाओं को देख रहे हैं, क्योंकि कि मुस्तफा की महफिल पाक के मुस्तफा भी तशरीफ लेकर आते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लेकर आते हैं। लेकिन याद रखना, आज हम किसकी शादी में आए हैं? मंसूर भाई की साहबजादी की शादी के मौके पर हाजिर हुए हैं। किसके? मंसूर भाई। अब याद रखना, मंसूर भाई की बेटी की शादी है। बेटी, वाह रे बेटी तेरी अजमत को सलाम, वाह रे बेटी तेरी किरदार को सलाम, वाह रे बेटी तेरी हौसले को सलाम। रब्बे कायनात ने इस बेटी के अंदर कितने मौजिज़े रखे हैं, कितनी इसमें फजीलतें रखी हैं, इसमें कितनी उम्दा रब्बे कायनात ने और बेटी को मर्तबा दिया है, कितना उम्दा मर्तबा दिया है। तुम्हें पता नहीं है, मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके घर के आंगन में पहली बेटी जन्म लेती है, गोया कि उसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया है। आप अंदाजा लगा लीजिए, नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया है उसकी जन्नत की जमानत मुझ मोहम्मद ने देता है। आप अंदाजा लगा लीजिए, आज मैं सिर्फ बेटी ही के ऊपर गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि आज एक बेटी के लिए, आज बेटी के शादी के मौके पर ये महफिल पाक सजाई है। क्योंकि याद रखना, ये बेटी माँ बाप के लिए रहमत हुआ करती है। आज कुछ लोग बेटी को हिकारत की निगाहों से देखते हैं कि बेटी रहमत नहीं बल्कि जहमत होती है, बेटी जहमत नहीं होती है बल्कि माँ बाप के लिए रहमत हुआ करती है। लेकिन आज तुम बेटों पर नाज करते हो, लेकिन खुदा के लिए बेटों पर नाज मत किया करो, बेटियों पे नाज किया करो। क्योंकि याद रखना, अगर बेटा घर के अंदर रब्बे कायनात पैदा करता है, अगर किसी को
बेटा देता है तो रब्बे कायनात फरमाता है ए मेरे बंदे जा हुए जमीन पर जा, खुद कमा के खाना और अपने माँ बाप को भी कमा के खिलाना। जब बेटी को पैदा करता है तो रब्बे कायनात फरमाता है मेरी बंदी जा, मैंने तेरी भी रिस्क का इंतजाम कर दिया है, तेरे माँ बाप की भी रिस्क का इंतजाम कर दिया है। आप अंदाजा लगा लीजिए, बेटों पर नाश करने वालों कान खोलकर सुन लो, जब बेटा पैदा होता है तो रब्बे कायनात जन्नत का एक दरवाजा खोलता है और रहमत का एक दरवाजा खोलता है। जब बेटी को पैदा करता है तो रब्बे कायनात जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देता है, रहमत के सारे दरवाजों को खोल देता है। आज हम बेटियों को हिकायत की निगाहों से देखते हैं, बेटियां रहमत होती है, जहमत नहीं होती है। अगर ये बेटियां हिकायत की निगाहों से देखने वाली होती तो रब्बे कायनात अपने महबूब के घर में चार चार बेटियों को पैदा न करता। आप अंदाजा लगा लीजिए ये बेटियां कितनी बड़ी रहमत है। अल्लाह ने अपने महबूब को अता करके ये ऐलान कर दिया है कि बेटियां जहमत नहीं होती है, बेटियां माँ बाप के लिए रहमत हुआ करती है। लेकिन आज तुम सोच रहे हो कि ये हमारे घर के अंदर बेटा पैदा होगा तो हमारी नस्लें इससे चलेंगी, हमारी नस्लें इससे आबाद रहेंगी। लेकिन खुदा के लिए ये बेटियों पर बेटों पर नाश करने वालों, मेरे मुस्तफा का खानदान बेटों से नहीं चला है, बेटियों से चला है। अगर उन बेटियों को सैयदा फातिमा की कनीज बनकर तुम जिंदगी जीने का हुनर दे दोगे तो याद रखना तुम्हें बेटों से नहीं पहचाने जाओगे बल्कि बेटियों से तुम पहचाने जाओगे। लेकिन याद रखना आज तुम बेटों को नाश करने वालों, बेटियों को तुम हिकायत की निगाहों से देख रहे हैं। अगर बेटी घर के अंदर आ जावे तो याद रखना जमाने वाले उसे ताना मारते हैं, या के बाद मंगल पैदा हो जाए तो बेटियां आ जाए उसके घर के आंगन में, याद रखना सास भी ताना मारती है, ससुर भी ताना मारते हैं, देवर भी ताना मारते हैं, ननद भी ताना मारती है। लेकिन याद रखना ये बेटी कितनी बड़ी रहमत होती है, तुमको इसका अंदाजा नहीं मालूम है। जब तक दुनिया के अंदर है वो अपने माँ बाप के लिए रहमत है, मरने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए रहमत हुआ करती है। लेकिन कल मंसूर भाई अपने साहबजादी का अक्ते निकाह करके सिर्फ वो अपनी बेटी ही को विदा नहीं कर रहे हैं बल्कि वो अपने घर की रहमत को विदा कर रहे हैं, अपने घर की बरकतों को विदा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, शायर ने कहा था कि उनके घर में रहमत की खेतियां नहीं होती है, उनके घर में रहमत की खेतियां नहीं होती है, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। लेकिन याद रखना बेटों पर नाश करने वालों, अगर किसी के घर में 10 बेटे हो तो याद रखना वो घर काटने के लिए दौड़ता है। अगर उन्हीं 10 बेटों में अगर एक बेटी पैदा हो जाए तो ऐसा लगता है कि उजड़े चमन में फूल खिल गया है। बेटियां कितनी बड़ी रहमत होती है। आज तो बेटियों को हिकायत की निगाहों से देखने वालों, हजरत इसी भारत के अंदर एक अजीब व गरीब वाकया पेश हुआ है कि एक नौजवान के जब 6 बेटियां पैदा हुई है तो याद रखना घर का इंसान उसे ताना दे रहा था, घर का हर अफराद उसे बुरा भला कह रहा था कि घर के अंदर कैसी आई है, बेटियां ही बेटियां लेकर आई है। लेकिन याद रखना मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसके घर के आंगन में 7 बेटियां जन्म लेती है उसकी जन्नत की जमानत मुझ मोहम्मद ले लेता है। तो इतने में एक सहाबी रसूल और खड़े हो जाते हैं, कहा या रसूल अल्लाह जिसके पास 6 बेटियां हो तो उसके लिए क्या है? तो नबी फरमाते हैं उसके लिए भी जन्नत है। कहा जिसके पास 5 बेटियां हो, नबी ने फरमाया उसके लिए भी जन्नत है। जिसके पास 3 हो, कहा उसके लिए भी जन्नत है। कहा जिसके पास 2 हो, कहा उसके लिए भी जन्नत की जमानत मुझ मोहम्मद लेता है। और अंदाजा लगा लीजिए, किसी ने कहा जिसके पास 1 हो तो कहा उसके लिए भी जन्नत की जमानत मुझ मोहम्मद ले लेता है। जब इतना कहा है तो इतने में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी हो गई। कहा या रसूल अल्लाह जिसके पास कोई बेटियां ना हो तो वो क्या करे? कहा अगर बेटी की हसरत लेकर वो मर जाए तो इतने में मुस्तफा फरमाते हैं कि उसकी जन्नत की जमानत में मुझ मोहम्मद ले लेता है। आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर हमारे घरों में बेटियां नहीं है तो मुस्तफा फरमाते हैं कि बेटियों की हसरत किया करो। अगर बेटियां रब्बे कायनात तब भी ना दे तो याद रखना मुस्तफा फरमाते हैं कि किसी गरीब बेटियों की हर शादियों में हाथ बटा लो तो एक बेटी का सवाल अदा कर दिया जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए, गरीब बेटियों की शादियों में हाथ बटा लिया करो। और जब 6 बेटियां जन्म
ली है तो घर का हर इंसान उसे ताना दे रहा था, लेकिन एक शौहर था जो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि जान रहे हो वो बाप होता है, बाप कभी अपनी बेटियों को बुरी निगाहों से नहीं देखता है, बेटियों को कभी अपनी औलाद को बुरा भला नहीं बोलता है। लेकिन जब समाज वालों ने उस पर ताने दिए हैं तो एक दिन रात की तारीकी में जब शौहर आता है अपनी बीवी से बोलता है, ए मेरी शरीक हया, आज तक मैंने तुझे कुछ नहीं बोला है, लेकिन आज बोल रहा हूँ, जब तेरी 6 बेटियां पैदा हुई है मैंने कुछ नहीं कहा है, तुझे 5 बेटियां हुई है मैंने कुछ नहीं कहा, 4 बेटियां पैदा हुई मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन 6 बेटियां आ गई है, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, समाज का हर इंसान मुझे ताना मार रहा है। ए मेरी शरीक हया, अगर साथ भी तेरे औलाद पैदा हुई, अगर बेटी पैदा हुई तो तेरी निगाहों के सामने तेरी बच्ची को मैं कत्ल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। किससे बोल रहा है? एक माँ से बोल रहा है। वो माँ है, माँ जानती हो कि अगर माँ तैरने की इस्तिताअत नहीं रखती है तो लाल कुएं में गिर जाए तो कुएं में छलांग लगा लेती है और अपने लाल को बचा लेती है, लेकिन वो माँ होती है, माँ के सामने कोई कत्ल का इरादा करे तो बताओ उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। वो माँ होती है। अगर बेटा तंदूर में गिर जाता है तो याद रखना माँ अपने आप को हलाक कर लेती है, लेकिन अपने लाल को बचा लेती है। बताओ उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उससे ये कहा जा रहा है तेरे लाल को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखना वो बहुत शौहर कहता है साथ भी बेटी जन्म ली तेरी निगाहों के सामने कत्ल कर दूंगा, वरना तुझे तलाक दे दूंगा या मारकर घर से अलग कर दूंगा। अल्लाह अकबर। वो खातून है अपने सब्र का मुजस्समा सीने में लेकर पहाड़ की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है। एक दिन रात की तारीकी में परवरदिगारे आलम की बारगाह में मुसल्ला डाल देती है। जैसे ही डालने के बाद मुसल्ले पर विराजमान होकर दो रकात खुदा की बारगाह में सजदे के लिए झुक जाती है। जैसे ही सजदा किया है परवरदिगारे आलम से कहती है परवरदिगारे आलम तो आलिमुल गैब है, जमीन के अंदर क्या हो रहा है उसका भी तुझे इल्म है, जमीन के ऊपर क्या हो रहा है उसका भी तुझे इल्म है, आसमान में क्या हो रहा है उसका भी तुझे इल्म है। परवरदिगारे आलम मेरे शौहर से जो कहा है तुझे उसका भी इल्म है। परवरदिगारे आलम मेरे मौला तूने मुझे एक बेटी दी है मैंने कोई शिकायत नहीं की, दूसरी बेटी दी है मैंने कोई शिकवा नहीं किया, तूने तीसरी बेटी दी है मैंने कोई शिकायत नहीं की, तूने मुझे 6 बेटियां दी है लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं की। परवरदिगारे आलम आज मेरे शौहर ने मुझे ताना दिया है कि 7वीं बच्ची जन्म ली थी तो तेरी निगाहों के सामने कत्ल कर दूंगा या तुझे तलाक दे दूंगा। परवरदिगारे आलम मेरी तलाक की बारी आएगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे मारकर हकाल देगा ये बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी निगाहों के सामने मेरी बच्ची को कत्ल किया जाए ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। परवरदिगारे आलम अगर मुझे 7वीं औलाद देना चाहता है तो मुझे बेटी नहीं बल्कि बेटा अता कर दे, अगर बेटी ही देना चाहता है तो मेरे शौहर का दिमाग ठीक कर दे। जब इतना जुमला कहा है रात की तारीकी में जब उसका शौहर सोता है और सोने के बाद वही शौहर सोया है तो परवरदिगारे आलम ने कयामत का मंजर दिखा दिया है। मीज़ाने अमल लगा हुआ है, गुनाहगारों के गुनाह तोले जा रहे हैं, नेकोकारों की नेकियां बढ़ती जा रही है। जैसे ही जब इसका नंबर आया है इसके नामाए अमल में सारे के सारे गुनाह है, नेकियां कोई नहीं है। जैसे ही रब्बे कायनात ने फरिश्तों को हुक्म दिया ऐ फरिश्तों इसे ले जाकर जाओ जहन्नम में डाल दो। जब जहन्नम के दरोगा आए हैं घसीट कर लेकर गए हैं जहन्नम के गेट पर, जैसे ही जहन्नम के पहले गेट पर पहुंचा है हैरत की इंतहा ना रही। जहन्नम को देखता है तो जहन्नम के 7 गेट है, कितने गेट है बोलो? जहन्नम के 7 गेट है। बेटियां कितनी है? 6 बेटियां है और जहन्नम के 7 गेट है। जैसे ही जहन्नम के पहले गेट पर लेकर गए हैं तो सबसे बड़ी वाली बेटी सीना तान कर खड़ी हो जाती है। परवरदिगारे आलम ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। देखो बेटियां कल कयामत के दिन भी दीवार बनकर अपने बाप के लिए खड़ी हो गई है, लेकिन याद रखना आज तुम बेटों पर नाश कर रहे हो। आज तुम्हारे बेटों की हकीकत में बताऊंगा कि बेटे क्या होते हैं। तुम बोल रहे हो इन्हीं से हमारी नस्लें चलेंगे, इन्हीं से हमारा खानदान चलेगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा जरूर बनेंगे, लेकिन ये तुम्हें सहारा देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने का सहारा बनेंगे। इसलिए तुम बेटों पर नाश कर रहे हो। जैसे ही पहले गेट पर लेकर गए हैं बड़ी वाली बेटी सीना तान कर खड़ी हो जाती है।
परवरदिगार आला, ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। ए परवरदिगार आला, इसने लोगों की गालियां तो खाई है, लेकिन कभी किसी के तैयार पर भीख मांगने नहीं भेजा है। ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। वहीं से जहन्नम के दरोगा है घसीट कर दूसरे गेट पर लेकर गए हैं, तो दूसरे नंबर वाली बेटी सीना तान कर आ जाती है। ए अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों, ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। तुम्हें पता नहीं है, इस मेरे बाप ने फटे हुए कपड़े तो पहने हैं, लेकिन कभी मेरे तन को दिखने नहीं दिया है। ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। अल्लाह अकबर। फिर जहन्नम के दरोगा खजीब का तीसरे गेट पर लेकर गए हैं, तीसरे नंबर की बेटी आ जाती है। चौथे गेट पर लेकर गए हैं, चौथे नंबर वाली बेटी आ जाती है। पांचवें गेट पर लेकर गए हैं, पांचवें नंबर वाली बेटी आ जाती है। जैसे ही छठे गेट पर लेकर गए हैं, सबसे छोटी वाली बेटी आ जाती है। कहती है परवरदिगार आला, ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। ए परवरदिगार आला, यही मेरा बाप है, जिसने तेरा नाम लेना सिखाया है, तेरा कलमा पढ़ना सिखाया है, तेरे महबूब के नगमे आलापा करने का हुनर इसी ने दिया है। ए परवरदिगार आला, तेरी मुकद्दस किताब कुरान अजीम पढ़ने का हुनर इसी ने दिया है। मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। जहन्नम के दरोगा जैसे ही सातवें गेट पर लेकर गए हैं, बेटी अच्छे थी तो छियों ने रोक लिया। अब सातवीं बेटी होती सातवें दरवाजे पर आ जाती। जैसे ही सातवें गेट पर लेकर गए हैं, अब उसे यकीन हो गया मेरी 6 बेटियां थी, छियों ने रोक लिया, लेकिन सातवें गेट पर कोई बेटी नहीं है, तो मुझे जहन्नम से कौन रोकेगा। अब उसको ये यकीन हो गया अब मेरा जहन्नम में जाना कंफर्म है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। अचानक उसकी आंख खुल जाती है, थर-थर कांपने लगता है। कहता है परवरदिगार आला, मुझे 7वां बेटा नहीं बल्कि मुझे बेटी अता मेरे बंदे, तूने इतनी जल्दी फैसला क्यों कर लिया, तूने इतनी जल्दी इंसाफ क्यों कर लिया। कहा है परवरदिगार आला, मुझे अब पता चल गया ये बेटे दुनिया का सहारा जरूर होते हैं, लेकिन बेटियां दुनिया का सहारा नहीं सही बल्कि आखिरत का सहारा होती है। बेटियां जो होती है तो आखिरत का सहारा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बशरीन मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटियां आखिरत का सहारा होती है। आज तुम बेटों पर इतना नाज कर रहे हो, यही बेटियां है, यही बेटियां है। अगर तुम अपने बेटे से कहोगे, अगर किसी नौजवान से कहोगे, ऐ नौजवान फलाना इंसान तेरे बाप को गालियां दे रहा था, तो यही बेटा क्या कहेगा कि फलाने का मुंह है वो पक रहा है। लेकिन अगर कोई बेटियों के सामने ये कह दे कि तेरा बाप जालिम है, तो याद रखना वो बेटी जुबान खींच लेगी, अपनी जान की बाजी लगा देगी, लेकिन कभी अपने बाप को बुरा भला नहीं कहने देगी। लेकिन आज तुम बेटों पर नाश कर रहे हो, यही बेटे हैं, इन्हीं बेटों के जरिए तुम जेल भी गए हो, इन्हीं बेटों के जरिए समाज में रुसवा हुए हो, इन्हीं बेटों के जरिए मार्केट में जलील हुए हो। मुझे बताओ कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटी के खातिर जेल गया हो। कोई ऐसा बाप नहीं है। लेकिन ये बेटियां कितनी बड़ी सब्र का मुजस्समा होती है, अपने माँ बाप के लिए कितनी बड़ी रहमत होती है। अगर तुमने बेटों का रिश्ता किया है तो याद रखना, जब बाप भला जगह रिश्ता करके आता है, उसका फोटो भी साथ में लेकर आता है। बाप कैसा है बेटा, फलानी की बेटी के साथ में तेरा रिश्ता करके आ रहा हो, उसका फोटो ये है, तो वो बेटा क्या कहता है कि इसकी नाक मोटी है, मैं इसके साथ में रिश्ता नहीं करूंगा। बताओ तुमने अपने माँ बाप को वही रुस्वा कर दिया या नहीं कर दिया। बाप तो जबान देकर आया था, क्या बाप की जुबान की कोई अहमियत नहीं है? तो फिर भी बाप है अपनी औलाद के लिए लड़ता ही रहता है, वहाँ सब झुका कर चला जाता है, दूसरी जगह पर देख कर आता है, वहाँ भी चला आ जाता है, कहता है देखो ये फलाने की बेटी का रिश्ता तेरे साथ किया है, ये इसका फोटो ये है। तो याद रखना वो बेटा कहता है इसकी आंखें छोटी छोटी है, मैं इससे रिश्ता नहीं करूंगा। वहाँ भी बाप को रुस्वा करते नजर आ रहे हो, लेकिन बेटा हर जगह अपने बाप को रुस्वा करता है। लेकिन मुझे बताओ कभी बेटी ने अपने बाप को रुस्वा किया है? कभी नहीं किया है। लेकिन याद रखना तुम बेटों से लाख मरतबा पूछते हो, कभी बेटियों से तुमने पूछा है कि फलाने के साथ रिश्ता करके आ रहा हो? कभी नहीं पूछा है। जब बारात घर पर आती है तो याद रखना समाज की बेटियां क्या कहती है, बहन तेरे साथ में जिसका रिश्ता होने वाला है, जो तेरा दूल्हा बनने वाला है, वो शराबी है, नशीली भी है, गजेड़ी भी है, लेकिन याद रखना वो अपरहेज भी है। परवरदिगार आलम के महबूब बंदो, तुम आज तुम्हें कुछ खबर नहीं है। वो समाज की जब बेटियां उससे कहती है
पढ़ती है, लेकिन मुझे बताओ वो बेटी कभी जुबान नहीं हिलाती है। जैसे ही गाँव की सहेलियां बोलती है तो वो बेटी कहती है, ऐ मेरे माशरे की बेटियों, खामोश रहो वरना जुबान खींच लूंगी। तुम्हें मालूम नहीं है वो अनपढ़ हो चाहे बहरा हो चाहे वो लंगड़ा हो, आज मेरे बाप की इज्जत का सवाल है। अगर आज मैं अपनी जुबान हिला दूंगी तो याद रखना मेरे बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं बेटी हूँ, बाप की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलना देख सकती। जब भी मैं अपने बाप को देखती हूँ तो बुलंदियां देखना चाहती हूँ, अपने बाप की इज्जत देखना चाहती हूँ। यही बेटियां है, अगर अंधे के साथ में बांध देते हो तो अंधे के साथ चली जाती है, लंगड़े के साथ में बांध देते हो तो लंगड़े के साथ में चली जाती है, कभी जुबान तराजी नहीं करती। और ये बेटियां इसलिए कि वो अपने बाप को रुस्वा नहीं करती है। अगर मैं आज मैं अपने बाप को रुस्वा कर दूंगी तो मेरा बाप जलील हो जाएगा। मैं अपने बाप को जलील होता हुआ नहीं देख सकती, बल्कि अपने बाप को बुलंद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तशहीद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। बहुत खूब। ये बेटियां हैं जो अपने बाप को कभी रुस्वा होते हुए नहीं देख सकती। ये बेटे हैं हमेशा अपने बाप को जलील करते हैं, समाज के अंदर जलील करते हैं। लेकिन याद रखना ये बेटियां कभी अपने बाप की बुराई नहीं सोच सकती है। लेकिन आज तुम हो घर बाजार से कुछ सामान लेकर आते हो तो याद रखना जब परदेश से तुम आते हो तो इन बेटियों की हकीकत पूछ लेना। याद रखना यही बेटियां है, जब तुम परदेश से आते हो तो घर में फोन करते हो, ए बेटी मैं आऊंगा रात के 2 बजे आऊंगा। तो याद रखना बेटा भी सो जाता है, बीवी भी सो जाती है, लेकिन सिर्फ जागने वाली तरह बेटी हुआ करती है। भाई भी सो जाता है, भैया भी सो जाता है, बहनें भी सो जाती है, लेकिन रात की तारीकी में अगर कोई जागता है तो सिर्फ बेटी हुआ करती है। इसलिए कि अगर वो बेटी जागती है ताकि मेरा बाप ज्यादा देर तक दरवाजे पर न खड़ा हो जावे। लेकिन आज तुम इन बेटियों को हिकायत की निगाहों से देख रहे हो। जब परदेश से सामान लेकर आते हो तो याद रखना तेरा 6 साल का बेटा है, लेकिन वो 3 साल की बेटी है, तो वो 6 साल का बेटा वो घर के अंदर बैठा रहेगा। लेकिन बेटी जैसे ही देखती है वो 3 साल की बेटी है दौड़कर अपने बाप की कलाई को थाम लेती है, लेकिन वो बाप अपनी बेटी को इग्नोर कर देता है। लेकिन याद रखना तूने आज बेटी को इग्नोर किया है तो रब्बे कायनात तुझे इग्नोर कर देगा, कहाँ के रहोगे। आज तू जो रोजी पा रहा है वो किसी और की बदौलत नहीं, बेटियों ही की बदौलत पा रहा है। आज तेरे घर के अंदर जो बरकत है वो बेटियों ही की बदौलत बरकत है। लेकिन ये बेटियां कितनी बड़ी रहमत होती है। मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर बेटियां बेआबरू घूमती है उस घर से बरकत को छीन लिया जाता है। जिस घर के अंदर बेटियां बेपर्दा घूमती है बरकत को उठा लिया जाता है। जिस घर की औरतें हैं बेपर्दा घूमती है तो रब्बे कायनात उन भाइयों की रोजियों में कमी कर देता है। इसलिए बेटियों को कभी बेपर्दा मत घूमने दिया करो। आज तुम बेटों पर नाश कर रहे हो, लेकिन बेटियां जो है कभी अपने बाप की बुराई सुनना नहीं चाहती है। अगर तुमको यकीन नहीं होता है तो सैयदा फातिमा से पूछिए। मेरे पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा है जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल की है। अब अंदाजा लगा लीजिए हुजरा आयशा से निकली है और निकलने के बाद मदीने की गली कूचों में टहल रही है। रास्ते में अबू जहल मिला है, मेरे पैगंबर के खिलाफ बकवास की है। तो मेरे पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा कहती है, ए सालिम अबू जहल तू झूठा है, मेरा बाप सच्चा है। अल्लाह अकबर कहा तू झूठा है, मेरा बाप सच्चा है। तो इतने में अबू जहल ने सैयदा फातिमा के चेहरे पर तमाचा मारा है। सैयदा फातिमा रोती हुई मुस्तफा जाने रहमत के तैयारे मोहब्बत की तरफ जाने लगी तो हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा और देखने के बाद कहा, मेरे सरदार वो देखो आपकी जिगर का टुकड़ा सैयदा फातिमा आ रही है। मेरे पैगंबर ने कभी बेटी को ये नहीं कहा है कि बेटी, सिर्फ जब भी कहा है तो जिगर का टुकड़ा कहा है। लेकिन मेरे पैगंबर ने जैसे ही सैयदा फातिमा को रोते हुए देखा है, आंखों में आंसू देते हैं, तो याद रखना बाप जब भी अपनी बेटी को रोते हुए देखता है तो बाप रो देता है, मुस्कुराते हुए देखता है तब भी बाप रो देता है। अगर तुमको यकीन नहीं आता जो परदेश जाते हैं तो मुझसे पूछ लेना बेटी की हकीकत। अगर बेटी घर पर रहती है, बाप को एक दिन हुए होते हैं जाए हुए पर्दे, तो बेटी पूछती है पापा कब आओगे, अब्बू कब आओगे, तो बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं 6 महीने के बाद आऊंगा, साल भर के बाद आऊंगा, 3 महीने के बाद आऊंगा। क्योंकि जान रहे हो बाप बेटी से बहुत मोहब्बत करता है।
ہے جیسے ہی میرے پیغمبر نے دیکھا ہے سیدہ فاطمہ ہوتی ہوئی آ رہی ہے میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں جیسے ہی قریب گئے ہیں میرے پیغمبر نے دونوں گھٹنے ہیں زمین پر ٹیک دیے ہیں اس طریقے کے بازو پھیلا دیے ہیں اور پھیلانے کے بعد سینے سے لگایا ہے اور لگانے کے بعد کہا اے میری بیٹی تو نے فاتح کی زندگی کاٹی ہے کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہیں تو نے فاتح کی زندگی کاٹی کبھی تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہیں تیرے پیروں میں کانٹے چبھے ہیں کبھی تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہیں مہینہ مہینہ پر تیرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے لیکن کبھی تو نے آنسو نہیں بہائے ہیں لیکن اے میری بیٹی فاطمہ تیری آنکھوں میں آنسو کیسے آئے ہیں تو میرے پیغمبر کی بیٹی کہتی ہے بابا ابو جہل راستے میں ملا تھا آپ کے خلاف ایسا کہا تھا میں نے ایسا کہا تھا تو اس نے میرے چہرے پر تماچا مارا ہے ان علماؤں کی موجودگی میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لو ان عالموں کو گواہ بنا کر دیکھ لو عالموں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اگر میں ذرا سی بھی کوئی تاریخ میں کوئی گنجائش ہو تو بتا دینا اگر تاریخ کے اندر ذرا سی بھی کوئی کمی ہو تو ان عالموں سے پوچھ لینا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیے گئی کبھی مصطفیٰ کو جلال نہیں آیا اجڑیاں پھینکی گئی ہے کبھی مصطفیٰ کو جلال نہیں آیا سر سے شہر سے تربور کیا لیکن کبھی مصطفیٰ کو جلال نہیں آیا پیروں میں کانٹے بچھائے گئے پیروں میں کانٹے چھوئے کبھی جلال نہیں آیا راستے میں کانٹے ڈالے کبھی جلال نہیں آیا مصطفیٰ کو پتھر مارے کبھی مصطفیٰ کو جلال نہیں آیا جیسے ہی بیٹی فاطمہ کو مارنے کی پاری آئی ہے تو میرے پیغمبر آنکھوں میں آنسو لا کر کہتے ہیں اے بیٹی سیدہ فاطمہ ابو سفیان کو بلا کر لے کر آ جاؤ آج ابو جہل نے معافی نہیں مانگی تو آج ابو جہل کے لیے آج محمد بددعا کرنے کے لیے جا رہا ہے آج محمد نے بددعا کر دی تو قیامت تک کے لیے کوئی کافر ہوئے زمین پر پیدا نہیں ہوگا دوڑی دوڑی سیدہ فاطمہ ہے ابو سفیان کو لے کر آتی ہے ابو سفیان جیسے ہی آئے ہیں میرے پیغمبر کی بیٹی کو سینے سے لگایا ہے سارا قصہ بیان کیا ہے دوڑے دوڑے کہا جا رہا ہے ابو جہل کے دروازے پر جا رہے ہیں ابو سفیان کون ہے یہ مصطفیٰ کے بھائی ہے ابو سفیان کون ہے سیدہ فاطمہ کے چچا ہے لیکن ایمان لے کر نہیں آئے تھے تو اسی وقت حضرت ابو جہل کی دیکھ کے تھے لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھائی ہے لیکن ایمان لے کر نہیں آئے تھے جیسے ہی سیدہ فاطمہ کو سینے سے لگایا ہے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے ہیں دستک دی ہے اندر سے آواز آئی کون ہے کہا ابو سفیان ہے جب اتنا کہا ہے ابو سفیان ہے ابو جہل سمجھ گئے یہ میری ہی دین کا آدمی ہے باہر آیا تو ادھر ابو سفیان کے تیور بدلے ہوئے ہیں جیسے یہ تیور بدلے ہوئے تھے تو اتنے میں کہا یہ بتاؤ تو نے مکہ کے دستور کے خلاف تو نے بچی پر ظلم کیا ہے تو نے بچی کو ہاتھ اٹھایا ہے تجھے معلوم نہیں ہے کہ بچیوں پر ظلم کرنا یہ اتیاچار ہے تو نے سیدہ فاطمہ کو مارا ہے تو نے اتنا مارا ہے کہ اس کے چہرے پر تماچے چھپے ہوئے ہیں تو میرے پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی طرف ابو سفیان نے اشارہ کیا ہے کہا ہے بیٹی اس ظالم ابو جہل نے تیرے چہرے پر ایک تماچا مارا ہے اس ظالم کے چہرے پر 3 تماچے مارو اللہ اکبر جب اتنا کہا ہے سیدہ فاطمہ کہتی ہے چچا جان تمہیں پتہ نہیں ہے میرے بابا محمد رسول اللہ ہے لیکن میرے بابا نے کبھی یہ نہیں سکھایا ہے کہ بدلہ لیا جاوے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے بلکہ بدلہ دینا سکھایا ہے تو اتنے میں ابو سفیان کہتے ہیں ابو سفیان بولتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اتنا تم نے کہا میرا کلیجہ تو ٹھنڈا ہو گیا لیکن میرا کلیجہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے جب اتنا کہا ہے سیدہ فاطمہ کی کلائی کو ابو سفیان نے پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد ابو جہل کے چہرے پر تماچے مارے ہیں سیدہ فاطمہ خوش ہو گئی ہے جیسے ہی خوش ہوتے ہوئے ابو سفیان کی گود سے نکل کر کہا جا رہی ہے اپنے بابا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے جیسے ہی میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا ہے تو اسی وقت میرے پیغمبر نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے اور اٹھا کر کہا اے پروردگار عالم ابو سفیان کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ محمد کے دامن میں جگہ نہ یہ بیٹیاں ہے ایمان کی دولت میں نہیں ہے انہیں بیٹیوں ہی کے صدقے
صدقے سے ہماری اولادیں بھی نسل آباد ہوگی، بھائی بیٹیوں ہی کے صدقے سے ہماری اولادیں اچھی ہوگی، ان بیٹیوں ہی کے صدقے سے ہماری کمائیوں میں برکتیں ہوگی۔ اس لیے بیٹیوں کو دنیا دار کا طریقہ مت سکھانا، اگر تمہیں زندگی سکھانا ہے تو دنیا دار کی کوئی ہیروئن کی طریقے پر زندگی مت گزارنے دینا، اگر زندگی گزارنے دینا تو سیدہ فاطمہ کے طریقے پر زندگی گزارنے دینا۔ جب تمہاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کر زندگی گزارے گی تو انہیں دنیا سلام کرے گی، انہیں بکار سلام کرے گا، انہیں تہذیب و تمدن سبحان اللہ ماشاءاللہ تہذیب و تمدن سلام کرے گی۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ کم کر دیا جائے، یاد رکھنا یہ ایک بیٹی کی شادی ہے، ایک بیٹی کی شادی ہے۔ آج ہمارے یہ شادیوں میں رواج بڑا غمگین ہو گیا ہے، جان رہے ہو؟ آج ہمارے سماج میں یہ بہت بڑا رواج ہو گیا، شادی بیاہ میں کتے بھی کھا کر چلے جاتے ہیں، بلال بھی کھا کر چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی پیٹ بھر کر نہیں جاتا تو وہ ہمارا اپنا بھائی نہیں ہے۔ یہ سماج میں ٹوٹی ہوئی رت پکڑ رہا ہوں تو کہتے آج ہمارا کھان پان نہیں ہے فلانے کے گھر سے، بولتے یا نہیں؟ بولو، بولتے ہمارا کھان پان نہیں ہے ان کے گھر۔ یہ کیوں ایسا؟ کوئی گاؤں ایسا بچا ہو جس گاؤں میں یہ حرکت نہ ہوتی؟ میں جتنے گاؤں گیا ہوں سب میں یہ کھان پان نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ موت مٹی تم کر رہی ہے، دکھ سکھ میں تم کام آ رہے ہو، جب شادی اور خوشی کا موقع آتا ہے تو تمہارا بھائی رہ جاتا ہے، باہر کے ہاتھ کھا کر چلے جاتے ہیں، کتے بھی پیٹ بھر کر چلے جاتے ہیں، بلال بھی پیٹ بھر کر چلے جاتے ہیں۔ کیا اس پڑوسی بھائی کی قیمت اتنی نہیں ہے؟ کتے سے بھی زیادہ تم نے گرا دیا ہے، لیکن بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ آج تم غیروں کو بلا کر اپنے گھروں پر کھانا کھلا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر تمہارے گھر پر کوئی پیٹ بھر کر نہیں گیا ہے، وہ اپنا نہیں گیا ہے، دوسرے لوگ کھا کر چلے گئے ہیں لیکن اپنا نہیں کھایا ہے، مجھے پتا ہو کیا اس کے دل پر نہیں بیت رہی ہوگی۔ اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یاد رکھنا وہ بچے اپنے چاچا اپنے باپ سے کہتے ہیں اے بابا یہ بتاؤ نا کیا چاچا ہم کو دعوت دینے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بتاؤ وہ باپ اپنے بیٹوں کو کس طریقے سے تسلی دے رہا ہوگا، وہ باپ اپنے بیٹوں کو کس طریقے سے کہہ رہا ہوگا کہ بیٹا پریشان مت ہو، ابھی اپنا چچا آئے گا دعوت دے کر جائے گا، ابھی اپنا بھائی آئے گا دعوت دے کر جائے گا، تب اپنا کھانا کھانے جائیں گے۔ یا اللہ اکبر، اس طریقے کی حرکتیں بتاؤ اس بھائی کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ یاد رکھنا مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے مومن بھائی کا دل دکھایا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اس نے گویا کہ میرے دل کو دکھایا ہے۔ اگر تم مصطفیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے پڑوسی بھائی کو راضی رکھو۔ آج ہم امیروں کو دعوت دے دیتے ہیں، رئیسوں کو دعوت دے دیتے ہیں، لیکن ہم نے دعوت نہیں دی تو اپنے غریب بھائی کو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں ولیمہ کھانے کا کوئی شادی کا کوئی بھی کھانا ہوتا ہے وہ ولیمے کا کھانا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا؟ ولیمے کا کھانا۔ خوشی کا کوئی بھی کھانا ہوتا ہے وہ ولیمے کا کھانا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسی خطا مت کرنا، غریب کو مت چھوڑنا، غریب کو مت چھوڑنا۔ غریبوں کو سینے سے لگایا ہے، مصطفیٰ نے سینے سے لگایا ہے، کیونکہ یاد رکھنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امیری پسند نہیں تھی، غریبی پسند تھی، اور اپنی امت کے لیے یہ دعا کی ہے اے پروردگار عالم میری امت کے تمام واسیوں کو دولت والا بنا۔ یہ دولت جو آئی ہے کسی اور کی دعاؤں سے نہیں آئی ہے، مدینے والے کی دعاؤں سے آئی ہے۔ لیکن آج ہم جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو یاد رکھنا ہم سبوں کو شادی کا نیوتا دے دیتے ہیں لیکن غریب کو نہیں دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری شادی ہے۔ ایک شادی میں تمہیں اور دکھاتا ہوں، ایک شادی ہے جو سرکار غوث اعظم کے دیار محبت میں شادی ہوئی تھی۔ وہ ایمان والے کی شادی نہیں تھی بلکہ وہ بھی ایمان والے کی شادی تھی، وہ کوئی مسلمان کی شادی نہیں تھی بلکہ ایک کافر کی شادی تھی۔
थी। जान रहे हो बसरा से एक बारात चली थी, वो किसी ईमान वाले की नहीं थी बल्कि बेईमान की साथ बेईमान वाले की थी। यानी तो आप लोग जान रहे हो मार वाली बिरादर जानते हो या नहीं? मार वाली बोलते हैं ना, है? ये बहुत अमीर कौम का नाम है। तो बसरा से जब बारात चली है कहाँ? बगदाद मोहल्ला के लिए। वो अमीर घराने की बारात जब चली, डाकुओं को खबर हो गया, उसने अपने जासूस लगा दिए, फला जंगल से होते हुए जाएगी, जैसे ही फला जंगल में पहुंचेंगे उसको लूटेंगे। अब जैसे ही बारात बसरा से निकली है, जंगलों की ओर पड़ी है, जैसे ही जंगल की ओर चली है, जैसे ही फला जंगल में पहुंची है जहां डाकुओं ने अपना अड्डा जमा लिया था, तो जासूसों ने खबर कर दी कि बारात आ गई है। डाकू सारे छूट पड़े हैं, बारातियों को मारना शुरू कर दिया है, दूल्हा को भी मारना शुरू कर दिया है, हत्या के सारा सामान लूट लिया है और यही तक महदूद नहीं, दूल्हा को भी मार दिया है। एक इंसान अपनी जान बचाते हुए दौड़ा जैसे ही बगदाद मोहल्ला गया है, जैसे ही बगदाद पहुंचा है, पहुंचने के बाद लोगों से पूछ रहा है कि आपके गांव में बारात आने वाली थी, वो घर कौन सा है? तो किसी बताने वाले ने बताया वो 2 मंजिला वो 2 मंजिला देख रहे हो, वही उसका घर है, वही बारात आने वाली है। वो पूछता जैसे ही उस घर पर पहुंचा है, कहा लड़की का दूल्हा, लड़की का बाप कौन है? कहा लड़की का बाप वो है। जैसे ही लड़की के बाप को बुलाया है, बुलाने के बाद कहा ए भैया तुम्हें पता नहीं है जो तेरी बेटी का शौहर बनने वाला था वो जिंदगी में कभी शौहर नहीं बनेगा, जो तेरी बेटी सुहागन बनने वाली थी वो कभी और सुहागन नहीं बनेगी। बोले क्या हुआ? बोले तेरा जो दामाद बनने वाला था डाकुओं ने उसे मार डाला है। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा है वो बाप धरती पर गिर गया है, जैसे ही धरती पर गिरा है तो अचानक उसकी बेटी को खबर हो जाती है, बेटी ऊपर से उतर कर नीचे आती है, अपने बाप के चेहरे पर पानी मारती है, पानी मार कर होश में लाती है और लाने के बाद कहती है बाबा बात बताइए ना क्या हुआ? बोले तो बेटी बड़ा गजब हो गया। बोले जल्दी बताइए ना क्या हुआ? अभी आपके चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था, लेकिन अचानक क्या मुरझा गया है? क्यों मुरझा गया अचानक? आपका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, लेकिन इसकी चमचमाहट कहाँ चली गई है? सूरज की तरह चमका रहा था, इसकी चमचमाहट कहाँ चली गई है? तो बाप ने अपनी बेटी को सीधे से लगाकर रोया और रोकर कहा बेटी अब तू कभी जिंदगी में सुहागन नहीं बन सकती, अब तू आबागन बनकर जिंदगी गुजारेगी। लेकिन वो बेटी जानती है मैं किसी और के शहर में नहीं रहती हूँ, सरकार गौसे आजम के शहर में रहती हूँ, लेकिन जो गौसे आजम के शहर में जो रहता हो वो कभी बेसुहागन बनकर जिंदगी काट नहीं सकता, आबागन बनकर जिंदगी गुजार नहीं सकता है। बोले जल्दी बताइए क्या हुआ? कहा तेरा शौहर जो बनने वाला था डाकुओं ने उन्हें मार दिया है। कहा ऐसा हो नहीं सकता, पहले ये बताओ कि तुमने गांव के अंदर सबों को दावत दी है या ना दी है? तो बाप कहता है बेटी मैंने सबों को दावत दे दी है। बोले तूने कहीं ना कहीं गलती की है। बोले मैंने कहीं गलती नहीं की है। तो बेटी पुकार कर कहती है ए बाबा तुमने किस किस को दावत दी है? क्या तूने बगदाद मोहल्ला में रहने वाले झोपड़ियों में उन फकीरों को भी दावत दी है? कहा बेटी मैंने सेठों को दावत दी है, लेकिन झोपड़ी में रहने वाले फकीरों को दावत नहीं दी है। ए बाबा बेटे मैंने अमीरों को दावत दी है, लेकिन झोपड़ी में रहने वाले फकीरों को दावत नहीं दी है। मैंने बड़े बड़े मालदारों को दावत दी है, लेकिन झोपड़ी में रहने वाले दुर्वैशों को दावत नहीं दी है। तो वो बेटी कहती है ए बाबा सबसे बड़ी गलती तुमने यही की है, जल्दी जाओ मुझे दावत देकर आओ। जैसे ही गए हैं सरकार गौसे आजम से कहा आपकी अभी दावत है। जब इतना जुमला कहा अभी दावत है, अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम ने अपनी निगाहों को बंद कर दिया है। गौसे आजम फरमाते हैं मामला खराब हो गया, अब आया है। अल्लाह अकबर। जैसे ही सरकार गौसे आजम ने कहा चलो मैं आता हूँ, वो नौजवान चल दिया है, अपने घर पर आता है। गौसे आजम पीछे पीछे आते हैं, सारे बराती भी आ गए हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं सभी लोग खाना खाओ। तो बरातियों ने एक जुमला कहा था कि हमारा दूल्हा ही ना रहा, हम खाना कैसे खाएंगे? पहले दूल्हा खाएगा, बाद में बराती खाएंगे। कहाँ है तुम्हारा दूल्हा? बोले वो तो इंतकाल हो गया है, उसको घर ले जाया जा रहा है। कहा उसको वापस लेकर आओ, क्योंकि जान रहे हो तुम्हें पता नहीं है कि बराती कभी खाता है, पहले
पहले दूल्हा खाता है, बराती तभी खाता है, पहले दूल्हा नाश्ता करता है, तभी बाद में बराती करता है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम ने उसको बुलाया है और बुलाने के बाद उसको जो माला पहन कर आया था, जो दूल्हा बनकर आया था, तो वो चैन की नींद सो रहा है, वो मौत की आगोश में पहुंच गया है। सरकार गौसे आजम जैसे ही करीब में गए हैं और जाने के बाद तमाम बरातियों को इशारा किया, तुम जल्दी शुरू करो खाना, तुम्हारा दूल्हा भी अभी तुम्हारी बारात का दूल्हा भी आने वाला है। सरकार गौसे आजम ने कपड़ा हटाया है और हटाने के बाद कहा, ए बशरा के दूल्हा, तू इतनी गहरी नींद में है कि अभी बाराती खाने वाले हैं और तू इतनी चैन की नींद सो रहा है। जब इतना कहा है, वो जो मौत की आगोश में सो गया था, वो उठता हुआ सरकार गौसे आजम के चरणों पर कुर्बान हो गया है। अल्लाह अकबर। जैसे ही गौसे आजम के चरणों पर कुर्बान हुआ है, तो उस लड़के का बाप भी गौसे आजम के कदमों पर गिर कर कहता है, गौसे आजम, जब आप मेरे बेटे को जिंदगी दे सकते हैं तो ईमान की दौलत भी आप ही देंगे। अल्लाह अकबर। सबों ने कलमा पढ़ा, ईमान में दाखिल हो गए हैं। जब वो बेटी दौड़ कर आई है और आने के बाद अपने बाबा से कहती है, ए बाबा, मुझे यकीन था कि बराबर बगदादी मोहल्ला में जब सरकार गौसे आजम जिंदा है तो कोई अभागन होकर जिंदगी नहीं काटेगी, सबसे आखिर बनकर जिंदगी काटेगी। ए बाबा, मैं अपने गौसे आजम पर कुर्बान हो रही हूँ और दिल से कलमाए तैयबा पढ़ रही हूँ। बाप ने कहा था, बेटी क्यों कलमा पढ़ रही हो? बोले, तुम्हें पता नहीं है तो मैंने बहुत से मोहब्बत की थी, तो मैं अभागन होने से बच गई हूँ। आज मैं कलमाए तैयबा पढ़ रही हूँ ताकि जहन्नम से छुटकारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामात गौसे आजम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहन्नम से छुटकारा पाना, इसलिए कभी गरीबों को छोड़ा मत किया। मुस्तफा ने गरीबों को सीने से लगाया है, तुम भी लगाया। परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। परवरदिगार आलम फरमाता है, ए मेरे बंदों, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। अपने महबूब, मेरे महबूब की जिंदगी पर तुम जिंदगी चलोगे तो याद रखना, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में कामयाब रहोगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि अगर शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो, उसको अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके से कलमा अता फरमाए। कल मंसूर भाई के साथ जारी का निकाह है। परवरदिगार आलम उस निकाह के अंदर जो दिक्कतें हैं ये आएंगी, ये आने वाली है, तमाम दिक्कतों का खात्मा अता फरमाए और तमाम मुसीबतों को दूर अता फरमाए और उस शादी को मंजिल मकसूद अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जा